Good morning, students. This is Manpreet Kaur, your English teacher from JPS Academy. Students, as on 13th of July, we had started the chapter in the Kingdom of Fool, and we had read two chapters. Up to, I'm just going to recapitulate you that it was the Kingdom of Fool, where there was a fool king and a fool minister who made the law that a day will be night and night will be day. And then Guru and his disciple come, and Guru just they were very much amazed to see all that, but Guru left the place because he had come to know that it is the place of fool. But disciple left there, he just stayed there. And then there was a theft in the merchant's house, wherein that merchant's house wall was collapsed, and it fell on the thief, and then the thief had been killed. And after that, the fool brother of that deceased thief had come to the king's court for the justice. Now we are going to start with the another page, that is page number 21 of your movement book. Okay, it is page 3 of this chapter, but of your movement book it is the page number 21. When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home? Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him." तो जब मर्चेंट उनके किंग के बुलाने पर जब वो आया, तो किंग ने उससे नाम पूछा कि क्या तुम्हारा नाम है, तो उसने नाम बताया, और उसने किंग ने फिर पूछा क्या तुम घर पे ही थे। तो उन्होंने कहते तुम घर पे थे जब ये डेड मैन ने तुम्हारी घर पे चोरी की, बर्गल करना, चोरी करनी। तो उसने बोला यस माय लॉर्ड। हम बोलते हैं ना, जो जजेस होते हैं उनको माय लॉर्ड बोलते हैं। तो ही ब्रॉक इन, वो ब्रॉक इन यानी कि वो मतलब यस ब्रॉक इन यानी कि धक्के से वो मेरे घर में घुस गया, और वॉल बहुत वीक थी जो कि उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। जो एक्यूज होता है वो बंदा जो गिल्टी है, जिसने मतलब कोई ऑफेंस किया है, दैट इज़ द एक्यूज। प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, गिल्टी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो तभी वो किंग क्या बोलता है कि तुमने तो तुम्हारी जो घर की जो वॉल थी उसकी वजह से तुमने यानी कि इस बेचारे के ब्रदर को मार दिया है, तुमने एक मर्डर किया है, तो इसी वजह से तुम्हें क्या करेंगे, हमें पनिश कर। "Lord," said the helpless merchant, "I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him." अब देखिए, जो मर्चेंट है वो भी आई थिंक बहुत क्लेवर होगा। अब देखिए, उसने अपना जो सारा उसने अपनी बात किंग की जो अपनी जो बिल्कुल गिल्टी थी वो किसके ऊपर डाल दी, उस बंदे के ऊपर जिसने उस वॉल को बनाया। कैसे? कहते हैं लॉर्ड, मैं हेल्पलेस मर्चेंट ने ये बोला है, लॉर्ड मैंने ये वॉल नहीं बनाई है, ये एक्चुअल फॉल्ट उस बंदे का है जिसने इस वॉल को बनाया है। उसने इस वॉल को अच्छे से नहीं बनाया, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। I know the man. He is an old man now. He lives nearby. तो तभी जवाब जो किंग है कहता है कौन है वो। तो तभी वो जो क्लेवर मर्चेंट है वो बोलता है कि ये जो वॉल थी मेरे फादर की टाइम में बनाई गई थी, और मैं उस बंदे को जानता भी हूँ। अब वो ओल्ड हो गया है और वो मेरे घर के साथ ही पास ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तभी जो किंग के मैसेंजर्स थे वो उसको ले आए, उस ओल्ड मैन को, और वो किंग की कोर्ट में जब पेश किया तो उसको टाई कर दिया गया, फुट और हैंड को। You there? Did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is that you built? It had fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो देखो वो क्या उससे पूछ रहा है, क्या तुम हो वो जिसने इस मर्चेंट की वॉल को बनाया है?
कैसी वॉल बनाई है तुमने कि इस बेचारे पुअर उस पुअर मैन के ऊपर वो वॉल गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तुमने एक मैन का मर्डर किया है और हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी बाय डेथ। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders. It's true. I built this wall, but it was no good, and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down the street and all day with her ankles jingling." अब देखिए वो ब्रिकलेयर की बात देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब वो ब्रिकलेयर क्या करता है, वो भी शायद क्लेवर है बहुत। उसने अपनी बात किस पे डालती, किसी और पे। क्या बोल रहा है वो, जब अभी किंग एग्जीक्यूशन उसकी जो सज़ा है वो सुनाने वाला ही होता है, तभी ब्रिकलेयर बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप अपना ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुनिए। मैं मानता हूँ कि मैंने ये वॉल बनाई है और ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा माइंड पूरी तरह से इस पर नहीं था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं ये वॉल बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल जो थी वो गली में इधर उधर आ जा रही थी। उसकी अपनी एंकलेट्स, अपनी जो पायल की रिंगिंग आवाज़ से, यानी कि जिंगलिंग होती है जो मेटल जो साउंड करता है, अपनी छनकती पायल से वो उसने पहनी हुई थी। तो वो बार बार स्ट्रीट में इधर उधर जा रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और तभी मैं अपना माइंड और अपनी आइज़ वॉल पे नहीं रख सका, यानी कि मेरा ध्यान किसकी ओर चला गया, उस डांसिंग गर्ल की ओर चला गया। You must get that dancing girl. I know where she lives. और उसने क्या बोला कि अब आपको डांसिंग गर्ल को लेके आना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। देखिए नाउ नेक्स्ट देखिए, यू आर राइट, द केस डीपन्स। देखिए ये किंग जो है, ये फूल किंग जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वाइज समझ रहा है, कहता है कि हाँ अब तो केस और डीप हो रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. तो तभी कहता है क्या कहता है कि हमें इस केस डीप हो चुका है, हमें इसकी और भी मैटर के और गहराई तक जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, जज करना बहुत मुश्किल है। तो अभी डांसिंग गर्ल को लेके आओ जहाँ पर भी है। अब देखो भाई, डांसिंग गर्ल जो है वो तो बहुत सालों पहले वो वॉल बनी थी। अब वो डांसिंग गर्ल भी बेचारी बूढ़ी हो चुकी है और वो बहुत कांपते हुए कोर्ट तक आती है बेचारी, क्योंकि उसको बुलाया जाता है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall? Did you see him? तो कहता है कि तुम स्ट्रीट के इधर और उधर घूम रही थी तब बहुत साल पहले, जब ये बेचारा मैन, अब देखिए उसके लिए अब पुअर मैन कौन बन गया है, वो ब्रिकलेयर। जब ये बेचारा मैन ये इस वॉल को बना रहा था, क्या तुमने उसे देखा था? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो भी पता नहीं उसे रिमेंबर है या नहीं, अब उसे पता है फूल किंग है, अब इसके साथ बहस क्या करनी। तो वो कहती है हाँ येस आई रिमेंबर इट, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो अच्छा, तो तुम फिर स्ट्रीट में घूम रही थी इधर उधर तुम्हारी छनकती हुई पायल के साथ। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम जवान थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, यानी कि डाइवर्ट किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो तभी इसने ऐसी बुरी वॉल तैयार की, बनाई। It has fallen on a poor burglar and killed him. और ये उस बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मारा गया। You have killed an innocent man. You'll have to be punished. और तुमने एक बेचारे innocent बेगुनाह यानी कि बंदे को मार दिया है, इसी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। She thought for a minute. फिर जो वो डांसिंग गर्ल थी वो थोड़े टाइम के लिए सोचती है and said, "My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses,
said he would give it now and he would give it then and so on all day. तब जो डांसिंग गर्ल है वो भी थोड़े टाइम के लिए सोचती है और वो एकदम से वो बोलती है कि वेट माय लॉर्ड, मुझे अभी याद आया कि मैं क्यों स्ट्रीट के इधर और उधर घूम रही थी. एक्चुअली मैंने कुछ गोल्ड दे रखा था एक जो सुनार को, गोल्ड स्मिथ को, ताकि वो उसकी ज्वेलरी बना के दे. लेकिन ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, यानी कि स्काउंड्रल का मीनिंग होता है अब एक डिसऑनेस्ट मैन. वो स्काउंड्रल जो बंदा था वो बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस बना रहा था. कभी कहता था मैं आज देता हूँ, कभी कहता है मैं बाद में देता हूँ. सारा दिन वो मुझे एक्सक्यूज़ेस यानी कि बहाने मारता था. He made me walk up and down to his house a dozen times. और उसी की वजह से मैं मतलब दर्जनों बार दिन में उसके घर के गेड़े लगाती थी, उसके घर के आसपास घूमती थी ताकि मतलब उस गोल्ड के लिए. That was when this bricklayer saw me. ये उसी टाइम की बात है जब इस bricklayer ने मुझे देखा था. It's not my fault. ये मेरा कसूर नहीं है. My lord, it is the damn गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट. और ये किसका फॉल्ट है? उस गोल्डस्मिथ का फॉल्ट है. देन देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidences. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. तो देखिए अब वो पुअर जो फूल किंग है, देखो कहते ओहो पुअर थिंग, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है. दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग. और तभी उसने अपने जो उसको एविडेंसेस सबूत मिले थे उनको तोलते हुए यानी कि उनको देखते हुए उसने तब बोला कि अब हमें एट लास्ट हमें रियल कल्प्रिट यानी कि जो असली जो अपराधी है, कल्प्रिट यानी कि अपराधी है, वो मिल चुका है. अभी उस गोल्डस्मिथ को लेके आओ जल्दी से जल्दी जहाँ पर भी वो है. At once. Then क्या हुआ? The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. And then king के जो bailiffs थे यानी कि जो king की कोर्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं जो आगे उसके ऑर्डर का पालन करते हैं उसको bailiffs बोलते हैं. तो उन्होंने कहीं से भी गोल्डस्मिथ को सर्च किया एट देन, जो कि किसी कॉर्नर में अपनी किसी शॉप की कॉर्नर में छुपा हुआ था. जब उसे अपनी एक्यूसेशन यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज लगा था, ठीक है, एक्यूसेशन जब किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है किसी गलती का, ऑफेंस का, तो उसने ये सुना जब इसके बारे में, तब उसके पास अपनी ही स्टोरी थी बताने के लिए भी. ही हैड हिज ओन स्टोरी. अब देखिए उसकी स्टोरी क्या है. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. अब वो देखो क्या बोल रहा है कि my lord, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो एक गरीब सा सुनार हूँ. ये सच है कि मैंने इस नाचने वाली को बहुत बार एक्सक्यूज़ेस बनाए, मैंने इसको आना पड़ा मेरी वजह से मेरे डोर पे. लेकिन मैं इसका ऑर्डर कैसे पहले देता, मुझे इससे पहले किसका ऑर्डर तैयार करना था? एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर तैयार करना था. अब देखिए घूम फिर के बात कहाँ पे आई. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. और वो कहता है कि उनके घर में कोई मैरिज थी और वो वेट नहीं कर सकते थे. और आपको पता ही है इम्पेशेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पेशेंट? यस, पेशेंट का मीनिंग क्या है? अधैर्य यानी कि जिसमें बिल्कुल भी धीरज नहीं है, वो वेट नहीं कर सकते. आपको पता ही है कि रिच मैन कितने अधैर्य यानी कि वो कितने मतलब बिल्कुल भी इम्पेशेंट होते हैं. Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down? तो कहता अब वो देखो, अब किंग जो है वो अब वो उसके लिए अब वो जो डांसिंग गर्ल है वो पुअर बन चुकी है. अब वो बोलता अब ये रिच मर्चेंट कौन है जिसने इस बेचारी पुअर लेडी को इतने तुम्हारे घर के चक्कर कटवाए, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर एंड विच मेड अ मेस ऑफ दिस वॉल.
तो कहता है अब जिसने इस इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया और जिसने एक ऐसी मेसी एक बुरी वॉल बनाई और देन जिस वॉल और जो वॉल has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? तो कहता है कि मतलब वही कौन है वो गोल्ड्स मर्चेंट जिसने इस बेचारी डांसिंग गर्ल को इतने चक्कर कटवाए और जिसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसने ऐसी वॉल बनाई जिसने उस बेचारे चोर को मार दिया. अब उसका कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नेम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट. तो अबू सुनार ने उस मर्चेंट का नेम बताया एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस होज वॉल हैड फॉलन. अब देखिए घूम फिर के बात कहाँ पे आती है और उसने किसका नेम बताया? उस गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नेम बताया. वो कोई और नहीं था, वो वही ओरिजिनल ओनर था उस घर का जिसके घर की वॉल उस चोर के ऊपर गिरी थी. यानी कि घूम फिर के बात फिर से किसके ऊपर आ गई? मर्चेंट के ऊपर आ गई. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब कहता भी अब तो नया न्याय अब आया है पूरा घूम फिर के. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. अब देखो घूम फिर के फिर से बात मर्चेंट के ऊपर आई है, यानी कि मर्चेंट ही असली कौन है? कल्प्रिट है. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I'm innocent." तो तब क्या हुआ? अब फिर से जब उसको बहुत ही रूडली दोबारा जब बुलवाया गया उस किंग के कोर्ट में, अब वो बेचारा रोते हुए आ रहा था कि अब ये मैं नहीं था जिसने मतलब गोल्डस्मिथ से ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो मेरे फादर थे. मैं बिल्कुल आई एम इनोसेंट, मैं बेगुनाह हूँ. ही मेरे फादर तो अब नहीं है, ही इज़ डेड. अब देखिए फूल किंग का लॉजिक देखिए क्या लॉजिक देता है वो. But the king consulted his minister and ruled decisively. "It's true, your father is the true murderer. He is dead. But somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once even when I first set eyes on you, that you were at the roof of this horrible crime. You must die." देखिए अब किंग क्या बोलता है, उसने अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया, थोड़ा सा सलाह ली उससे और तब बहुत ही डिसीजन मेकिंग के साथ उसने क्या बोला, ये सच है कि तुम्हारे फादर वो जो है ही इज़ द ट्रू मर्डरर और वो नहीं रहे और उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए ना उसकी प्लेस पर. तुमने अपने फादर के उस क्रिमिनल फादर, अब देखिए उसने अपने उसके मरे हुए फादर को भी क्रिमिनल बोल दिया है. कहता है कि तुमने अपने क्रिमिनल फादर से इतनी सारी संपत्ति जो है वो विरासत में ली है. इनहेरिट करना विरासत में ली है, और अगर तुमने इतनी संपत्ति उसकी विरासत में ली है तो उसके पाप भी तो तुम्हें विरासत में मिलेंगे ना. सेंस का मीनिंग होता है बेटा पाप. I knew at once, मैं तभी जान गया था जब मेरी आंखें तुम पर पड़ी थी. बस फर्स्ट आई सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो. यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा. एंड देन ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. तो क्या हुआ, उसने स्टेक होती है फांसी का फंदा, उसने ऑर्डर किया कि एक नया फांसी का फंदा बनाया जाए जो कि रेडी किया जाए उस बेचारे मर्चेंट की एग्जीक्यूशन के लिए, उसको सज़ा देने के लिए, फांसी पे लटकाने के लिए. As the servants sharpened the stake, जब वो स्टेक जो थी उसको जब शार्प कर रहे थे, then got it ready for final impaling of the criminal, और वो जस्ट रेडी कर रहे थे से जो इम्पालिंग होती है उसकी फाइनल. वैसे तो इम्पालिंग का मीनिंग होता है किसी को किसी तीखे इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ चुभाना. यहाँ पे है एग्जीक्यूट करना. जब वो फाइनल उस इम्पालिंग होने जा रही थी क्रिमिनल मर्चेंट की, इट अकर टू द मिनिस्टर, तभी मिनिस्टर के मन में ये दिमाग में ये बात आई दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. और उसने देखो फूल मिनिस्टर ने क्या सोचा
कि ये जो क्रिमिनल जो रिच मर्चेंट है ये तो बहुत पतला है और ये उस फंदे में फिट नहीं आएगा। और देन क्या हुआ, व्हाट हैपन, ही अपील्ड टू द किंग, तभी उसने किंग को अपील किया, किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। एंड देन उसने जब ये किंग से ये बात की, किंग तो पहले से ही फूल था, मिनिस्टर भी फूल था, किंग भी बहुत चिंतित हुआ इस बात को सोचकर। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। और अब वो बेवकूफ़ दोनों किस डिसीजन पे आए, अब हमें एक ऐसे मैन की तलाश है, बंदे की तलाश है जो इतना फैट हो, जो इस फंदे में, स्टेक में फिट बैठ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो वो सर्वेंट थे उसके किंग के, अब उनको उसी टाइम भेजा गया कि वो एक ऐसे मैन को सर्च करें जो उस स्टेक में फिट बैठे। एंड देयर आइज फेल ऑन द disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। और उन्हें कौन मिला, वो फैटेंड, बहुत ही मोटा हुआ डिसाइपल, गुरु का वो चेला, जो कि महीनों से फ्री के बनानास खा खा के, राइस खा के बहुत भैंसे की तरह मोटा हो चुका था। अब देखिए ये बात किस पे आई है, एट द लास्ट उस डिसाइपल पे। तो द नेक्स्ट इज सस्पेंस, जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन, just read the chapter up to it। I will be giving you the question answers related to the text, answer them, write the answers in your notebooks and learn also। Thank you, have a nice day। These are the difficult words in the text that we have read, please go through them also if you have any problem।